السلام علیکم، آداب۔ میں خضر یافی اور آپ دیکھ رہے ہیں اما نیوز اردو خبرنامہ۔ خبرنامے کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائن سے۔ حلقہ اسمبلی عدل آباد کانگریس پارٹی انچارج کندی سرما ریڈی کی جانب سے مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش کے ضمن میں اردو صحافیوں کا اجلاس، تہنیت کی پیشکش۔ عادل آباد میں جاوا این جی او کے زیر اہتمام مشاعرے کا کامیاب انعقاد، کندی سرما ریڈی کی بحیثیت مہمان خصوصی شرکت۔ عادل آباد کی سرگرم تنظیم سیوا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام شاعر مشرق علامہ اقبال اور مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش تقاریب کا شاندار انعقاد، صحافیوں اور اساتذہ کی خدمات کی ستائش۔ البراق ٹورز اینڈ ٹراولز کے زیر اہتمام حافظ محمد منظور احمد کی قیادت میں تربیتی کیمپ کا کامیاب انعقاد، 12 نومبر کو قافلہ روانہ۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی 136ویں پیدائش کے موقع پر عالمی یوم تعلیم اور مائنارٹی ویلفیئر ڈے تقریب کا انعقاد کانگریس پارٹی پرجا سیوا بھون عادل آباد میں کندی سرما ریڈی کی ہدایت پر کانگریس پارٹی اقلیتی قائدین نے کیا۔ اقلیتی قائدین میں سابق نائب صدر نشین بلدیہ ظہیر رمضانی، محمد شکیل، خضر پاشا، سید شاہد علی، عتیق الرحمن، عبدالکلیم، محمد رفیق، محمد قیوم، عظمت خان، شوکت علی، تقیم الدین، عرفان خان، گما سنتوش، ایس نرسنگ، بی ستیش، عظیم، عزیز، کرما عفان نے اردو صحافیوں، صدر اردو جرنلسٹ فیڈریشن محمد شاہد احمد توکل، اعتماد ضلع اسٹاف رپورٹر امیم شریف، خضر احمد یافعی، محبوب خان، حمید اللہ انور، شیخ عصمت علی، محمد اشفاق، محمد معیز، محمد محسن، محمد شفیع، ایم بیگ کو ان کی خدمات پر شال پوشی کرتے ہوئے مومنٹو پیش کیا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر نائب صدر نشین بلدیہ ظہیر رمضانی، گما سنتوش نے مخاطب کرتے ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش اور ان کی سوانح حیات پر تفصیلی روشنی ڈالی اور اردو صحافیوں کی خدمات کی ستائش کی کہ آج اردو کی بقا صرف اردو صحافیوں کی بدولت ہی باقی ہے۔ انہی کی خدمات کے عوض آج اردو صحافیوں کو تہنیت پیش کی گئی ہے۔ اس اجلاس سے اردو جرنلسٹ فیڈریشن کے صدر محمد شاہد احمد توکل نے کندی سرما ریڈی اور تمام اقلیتی کانگریس پارٹی قائدین سے اظہار تشکر کیا کہ انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش اور ایجوکیشن ڈے پر تقریب منعقد کرتے ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد کو تعزیت پیش کی اور صحافیوں کو تہنیت پیش کی۔ ہم تمام ان کا فیڈریشن کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس موقع پر کانگریس پارٹی قائدین اور دیگر موجود تھے۔ ابھی یہ باقی کے ہمارے جتنے ہمارے دوست ہیں جو بنڈاری ستیش اور جو بھی یہاں پر ہے، یہ پروگرام اردو అబ్దుల్ మౌలానా గారి జయంతిని పురస్కరించుకొని ఈరోజు మరి సోదరుడు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారి ఆదేశానుసారంగా మరి ముఖ్యంగా ఉర్దూ విలేకరులకు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రతినిధులకు అందరికీ మరి ఇక్కడ సన్మానించడం జరిగింది। అదేవిధంగా మౌలానా అబ్దుల్ ఆజాద్ గారు మరి ఉర్దూ భాష విస్తరణకు, ఉర్దూ భాష ప్రావీణ్యాన్ని మరి భారతదేశంలో గుర్తింపు తెచ్చినటువంటి ఒక మహోన్నత గొప్ప వ్యక్తిని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो जन्मदिन है, उस मौके पर हमारे आदिल आबाद के जो रिपोर्टर्स, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जितने भी हमारे भाई हैं, आज कंदी सिन्हा के साथ के आदेश पर, उनके हुक्म पर आज प्रजा भवन में उनका सम्मान किया गया है।
اور ہمارے اردو کے رپورٹرس یہاں پر موجود ہیں. آج مولانا ابوالکلام آزاد کا 116ویں یوم پیدائش تقریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا. اسی ضمن میں کندی شینواس ریڈی صاحب کی ہدایت پر یہاں پر کانگریس پارٹی کے قائدین نے اردو رپورٹرس کے لیے تہنیتی پروگرام منعقد کیا. الحمدللہ ہم ان سب تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ لوگ ہم لوگوں کو یہاں پر تہنیت پیش کرتے ہوئے ہمت افزائی کی ہے. الحمدللہ مولانا ابوالکلام آزاد ایک ایسی شخصیت تھی جو کانگریس سے ہی تعلق رکھتے تھے اور وہ 1888 میں پیدا ہوئے تھے مکہ میں. الحمدللہ اور بعد میں جب ہندوستان آئے تو 1958 میں ان کا انتقال ہوا. تو یہ تمام ان کی جتنی بھی زندگی تھی پوری سیاست صحافت اور مصنف رہ کے کرے ہیں اور وہ ایک بہت اچھے قائد تھے اور کانگریس پارٹی کے وہ صدر بھی رہ چکے ہیں, قومی صدر بھی رہ چکے ہیں. اور کانگریس پارٹی میں وہ جب یہاں پر حکومت قائم ہوئی کانگریس کی تو وہ پہلے وزیر تعلیم تھے. اسی وجہ سے یہاں یوم تعلیم بھی منائی جاتی ہے اور مائنارٹی ڈے ویلفیئر ڈے بھی منایا جاتا ہے. الحمدللہ یہاں پر جو تقریب منعقد ہوئی ہم اس کے شکر گزار ہیں. عادل آباد اسمبلی حلقہ کانگریس پارٹی انچارج کندی شینواس ریڈی نے کہا کہ اردو زبان کی ترقی کے لیے وہ اپنی جانب سے پوری کوشش کریں گے. کندی شینواس ریڈی نے اتوار کی شب عادل آباد مستقر کے بجرنگ فنکشن ہال میں جاوا NGO کے صدر فیاض احمد شمع کی راست نگرانی میں منعقدہ مشاعرہ اور اردو شعراء کی تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. منتظمین نے کندی شینواس ریڈی کا پرتپاک استقبال کیا, گلدستہ اور شال پہنا کر اعزاز سے نوازا. اس کے بعد مختلف علاقوں سے آئے ہوئے اردو شاعروں نے اپنا کلام پیش کیا. کندی شینواس ریڈی نے بھی ایک شاعر کے ذریعے کلام پیش کیا اور سامعین کو جوش سے بھر دیا. کندی شینواس ریڈی نے کہا کہ حکومت اقلیتوں کی بہبود کے لیے پابند عہد ہے. انہوں نے کہا کہ وہ اقلیتوں کی ہمیشہ مدد کریں گے. انہوں نے کہا کہ وہ عادل آباد کے لوگوں کی خدمت کرنے آئے ہیں. منتظمین سے درخواست کی کہ ہر سال اس طرح کے اچھے پروگرام کا انعقاد کیا جائے. اس تقریب کی نظامت جناب ڈاکٹر M.A. قدیر نے کی, جبکہ مہمانوں کا استقبال فیاض احمد شمع کے علاوہ محمد رفیق, جلیل خان, اتو تلوار, خضر پاشا, نور خان پٹھان, سید شاہد علی و دیگر نے کیا. تیسری آنکھ کی طرح اپنی نظر رکھیے اور عوام کے پیچھے لاری ایسوسیشن عثمان صاحب جو سینئر رپورٹر ہیں, جو ایڈیٹوریل لکھتے ہیں, جن کے قلم میں بہت طاقت ہے, اسے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہونا چاہیے. کندی شینواس ریڈی صاحب چلے جانے کے بعد اپنے ہبہو فیس ٹو فیس بات کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. شینواس ریڈی صاحب کو آپ کے درمیان لائیں گے, اس کے بعد باضابطہ مشاورہ انشاءاللہ شروع ہوگا. واقف ہیں کوئی راز تو نہیں اور چرچے ہو رہے ہیں تمہارے عیبوں کے, چرچے ہو رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. یوں ہی نہیں یہ ہنستا گھر ٹوٹا ہے ہاتھوں میں, تیرے نام کی لکیر نہیں میرے ہاتھوں میں, یوں ہی نہیں یہ ہنستا گھر ٹوٹا ہے. اگر تلاش کروں کوئی مل ہی جائے گا, اگر تلاش کروں کوئی مل ہی جائے گا, مگر تمہاری طرح کون مجھے کو چاہے گا. تھینک یو سو مچ. ڈیڈیکیٹڈ ٹو آل پیپل آف عادل آباد. تھینک یو. بہت خوشی ہوئی آپ سب کو دیکھ کے. اردو از اے لینگویج آف نوابس. نوابوں کی لینگویج ہے اردو. It's spoken by one of the top-notch languages spoken in India, Southeast Asia. جو تلنگانہ کی سیکنڈ لینگویج ہے اردو. امپلیمنٹیشن میں اب تک آفیشیل بورڈز یا جو بھی ہو, سائن بورڈز, ضرور ہم کانگریس پارٹی کے مکھیہ منتری ہیں ریونت ریڈی صاحب, ان کے پاس ضرور لے کے جائیں گے کہ
जो भी हमारा शमू भाई एक्सप्लेन किया उनको लागू करने के लिए हमारा पूरा कोशिश रहेगा 100%। माइनॉरिटी भाइयों से मेरा विनती है, हम आदिलाबाद के माइनॉरिटी भाइयों कंपेयर टू अदर्स हम थोड़ा पिछड़े हैं। पूरा हमारा आदिलाबाद में सब जने हम पिछड़े हैं, मगर अभी अभी एजुकेशन के वजह से हमारा बच्चों, बेटी या बेटा दे भी ग्लोबल सिटीजन हो गए। आदिलाबाद को मैं आया, राजनीति में, पॉलिटिक्स में उतारा, और आदिलाबाद को जस्ट मैं रियली सर्विस सेवा करने के लिए राजनीति में आया, पॉलिटिक्स में आया। मगर आदिलाबाद की जनता ने मुझे इतना खुशी की खबर दिया कि मेरा पिताजी, अगर मेरा भाई भी अमेरिका में है, मेरा छोटा भाई, अगर मैं आदिलाबाद वापस मैं और मेरा भी दोनों ग्रीन कार्ड होल्डर से, अमेरिका का ग्रीन कार्ड है, 14 साल अमेरिका में रहा, अमेरिका में 1100 करोड़ की कंपनी है, तो जिंदगी अच्छा जा रहा था। नहीं, आदिलाबाद की जनता को कुछ करना है बोल के मैं आदिलाबाद को आया। और एक बात है, मैं राजनीति में आने के पहले मुझे हिंदी कुछ भी नहीं आता था, समझ सकता था मगर बोलने नहीं आता था। मैं ट्यूशन लगा के हिंदी सीखा, आपके लिए ट्यूशन लगा के सीखा। और ये भी बोलता हूं, अभी मैं उर्दू ट्यूशन लगाया हूं, 4 साल में मैं उर्दू आपसे फ्लुएंटली बात करता हूं, ये मेरा वादा है। मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं भी थोड़ा टॉप परफॉर्मर का एक का मुशायरा सुनना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू लिसन टू दैम बिफोर आई लीव। और इतना बड़ा अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट किया। हर साल मैं आपको वादा करता हूं, हर साल मेरा मदद रहेगा ये मुशायरा प्रोग्राम को, हर साल। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूं। मैं ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। दुआ करो मेरे लिए प्लीज, आप सब लोग दुआ करो और आपका आशीर्वाद दीजिए। तो उर्दू लैंग्वेज को डेवलप, तरक्की करने के लिए जरूर मेरा रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। मैं उर्दू लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए मैं भी जरूर मेरा पूरा ताकत में लगाता हूं सेकंड लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए। आदिलाबाद ज़िला में मकामी तंजीम सेवा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल की यौम पैदाइश और उर्दू के आलमी दिन की मुनासिबत से स्कूली तलबा के लिए बरोज़ हफ्ता मज़मून नवीसी और तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद किया गया था। इस सिलसिले में आज बरोज़ पीर 11 नवंबर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर शहर मुस्तक़िर के खानगी फंक्शन हॉल में एक तकरीब का अहतमाम किया गया और कामयाब तलबा में इनामात तक़सीम व उर्दू के लिए खिदमत अंजाम देने वाले असातिज़ा व उर्दू अखबारात व चैनल से वाबस्ता सहाफ़ियों की खिदमत का एतराफ़ करते हुए शॉल और मेमेंटो पेश करते हुए मुबारकबाद दी और एजाज़ से नवाजा। सरवत आलम ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम। परमानेंट लीडर ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल शाहीन, केरल के कालूबा शाहीन। उसके बाद गर्ल्स आदिलाबाद, वेरी गुड। नदीम सर, नवेरा थर्ड। 11 नवंबर को जो यौम तालीम मनाया जाता है, उस यौम तालीम के ज़िमन में मुख्तलिफ उर्दू मीडियम मदारिस के तलबा और तालिबात के लिए तहरीरी और तकरीरी मुकाबले मुनक़िद किए गए थे 9 तारीख को। और आज के इस जलसे के अंदर उन तमाम मुंतखब या कामयाब तलबा और तालिबात को इनामात दिए जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से तलबा तालिबात को अपनी सलाहियतें सबके सामने पेश करने का एक मौका मिला। ये भी हमने देखा कि 2 तालिबात ने बेहतरीन अंदाज में तकरीर पेश करने की कोशिश की थी। आज का ये प्रोग्राम जो यौम तालीम के उन्वान से मनाया जाता है, दरअसल ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खिदमत का एतराफ़ है कि जिसके एतराफ़ के तौर पर पूरे रियासत के अंदर
योम तालीम मनाया जाता है, बल्कि हमारी हुकूमत तेलंगाना ने 7 तारीख को और एक हुक्मनामा जारी करके माइनॉरिटी वेलफेयर डे के तौर पर भी उसको मनाने का एहतमाम किया। ज़िला कलेक्टर अदलाबाद राजर शीशा ने कहा कि ज़िले में बगैर किसी गलती के ख़ानदानी घर घर सर्वे किया जाए। अदलाबाद ज़िले में सर्वे का काम ज़ोर शोर से जारी है। फील्ड लेवल का अमला और शुमार कुनिंदगान घर घर जाकर ख़ानदान के अफराद की तफसीलात इकट्ठा कर रहे हैं और उनका इंदराज कर रहे हैं। उसके हिस्से के तौर पर ज़िला कलेक्टर ने अदलाबाद देही मंडल के तहत यापलगुड़ा व दीगर मकामात का दौरा करते हुए सर्वे के अमल का जायज़ा लिया। इस मौके पर अमले को मुख्तलिफ तजावीज़ दी। सर्वे शफाफ और गाइडलाइंस के मुताबिक करने की हिदायत दी। इन्होंने अमले को तजवीज़ दी कि कोई भी मसला हो आला अफसरान की तवज्जो में ज़रूर लाएँ। नीज़ अवाम को मशवरा दिया कि वह सर्वे के अहदेदारान के साथ ताउन करें और तफसीलात से आगाह करें। ఓన్లీ ఇంకెవరి దగ్గర లేదా ఉన్నాయి సార్ అట్లా మొబైల్ నంబర్ గంగమ్మ గారు దగ్గర ఉందా మొబైల్ మొబైల్ నంబరు తర్వాత అనూష ఎవరు ఆమె దగ్గర మొబైల్ లేదా మొబైల్ లేదా పక్కా ఉంటే 3 రాస్తున్నా సార్ అదే ఉంటే అందరిది మొబైల్ నంబర్ అందరిది రాస్తున్నా आदिलाबाद की सरगर्म तंजीम सेवा फाउंडेशन के सदर ख्वाजा सिराजुद्दीन की सदारत में अल्लामा इकबाल और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के ज़िमन में मुनक़्क़िदा पुरअसर तक़रीब जहाँ स्कूली तलबा को इनामात से नवाजा गया, वहीं मुख्तलिफ सरकारी व खानगी स्कूल्स के असातिज़ा व उर्दू सहाफ़ियों को एजाज़ से नवाजा गया। एवार्ड हासिल करने वालों में तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन से वाबस्ता सहाफ़ियों में ज़िला सदर जनाब शाहिद अहमद तवक्कल, महबूब ख़ान, हमीदुल्लाह अनवर, खिज़र अहमद याफ़ई, अमीम शरीफ, असमत अली, शेख मुआइज़, मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद शफ़ी, अशफाक़ अहमद व दीगर शामिल है। ख्वाजा सिराजुद्दीन समेत उनके रफ़ाक़ा ने सहाफ़ियों को शाल पोशी व मेमोंटो पेश करते हुए एजाज़ से नवाजा और उनकी खिदमत की सताइश। मैं असमत साहब से ख्वाहिश करूँगा कि डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। उसके बाद मैं मिर्ज़ा मुश्ताक एतमाद डेली न्यूज़पेपर मोमेंटो, उसके बाद मैं शेख मोहित साहब से ख्वाहिश करूंगा एसीएन न्यूज़ डाइस पर तशरीफ लाएं। मोहम्मद शफी साहब सहारा न्यूज़। कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी का प्रजा सेवा भवन कैंप ऑफिस हर वक्त अवाम की आमद से मसरूफ़ रहता है। हल्का भर से कायदीन, कारकुनान, चाहने वाले अवाम, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, असातिज़ा यूनियन के कायदीन कंदी श्रीनिवास रेड्डी से बज़ाते ख़ुद मुलाकात करने आए। इस मौके पर कई मसाइल उनकी तवज्जो में लाए गए। इन्होंने बहुत से लोगों का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया और उनके मसाइल दरियाफ़्त किए। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने तहम्मुल से सुना और मुस्बत जवाब दिया और यकीन दिलाया कि वो मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। నిజంగా న్యాయపరంగా మీరే భూమి అయితే మీకే చెందాలి అనేది నా ఫిలాసఫీ. ఇది కాపీ ఇవ్వండి, ప్రెస్ మీట్లో మాట్లాడారు, మాకు కాపీ. చాలా సంతోషం.
अलबुराक टूर्स एंड ट्रैवल्स हज व उम्रा सर्विसेज इंडिया की जानिब से बरोज़ पीर बतारीख़ 11 नवंबर 2024 को शहर मुस्तक़र अदलाबाद के हुसैन गेस्ट हाउस बक्कलगुड़ा में एक रोज़ा उम्रा तरबियती कैम्प का इनेकाद अमल में आया। कैम्प का आगाज़ हाफिज़ मोहम्मद मंजूर अहमद सदर तंजीम ऐमा मोज़िनीन की तिलावत से हुआ और इख्तिताम भी हाफिज़ मंजूर अहमद साहब की दुआ पर हुआ और हाफिज़ जुनैद ने नातिया कलाम पेश किया, जबकि मौलवी याकूब अली ने इस कैम्प में शिरकत करते हुए उम्रा जाने वाले अहबाब को उम्रे के दौरान किए जाने वाले आमाल, नमाज़ें, दुआएँ व दीगर मालूमात बितफ़सील फ़राहम की और अलबुराक टूर्स एंड ट्रैवल्स हज व उम्रा सर्विस की खिदमत को सराहते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अलबुराक उम्मत मुस्लिमा की खिदमत और सवाब की नीयत से चलाया जा रहा है। 12 नवंबर को 40 अफराद पर मुश्तमल इस महीने का काफ़िला रवाना होने वाला है। अलबुराक हज व उम्रा ट्रैवल्स की खुसूसियात में से यह है कि पूरे सफ़र में मुअल्लिम साथ रहता है और उलमा की निगरानी में तरबियत का मजबूत निज़ाम है। नीज़ अलबुराक की शाखें महाराष्ट्र के अलावा आदिलाबाद, निज़ामाबाद, निर्मल, कर्नाटक और हैदराबाद में भी सरगर्म अमल है। वाज़ेह रहे कि कैंप में इस महीने सफ़र उम्रा पर रवाना होने वाले मर्द व ख़वातीन के अलावा अलबुराक टूर्स एंड ट्रैवल्स हज व उम्रा सर्विसेज के मालिकान सैयद चांद और सुफियान अंसारी, नांदेड़ अब्दुल रज़ाक तेलंगाना इंचार्ज, मुफ्ती अब्दुल करीम, हाफिज़ अब्दुल अज़ीम निज़ामाबाद, सैयद जावेद अब्दुल रऊफ़ सलीम सर और हाफिज़ अबरार शेख मोहम्मद समेत कई अफराद कसीर तादाद में मौजूद थे। वही फरमाया समझाने के लिए तुम में से कोई इस तरह से आटा गूंथता है, हमारे घर में औरतें और बहनें आटा गूंथती है रोटी पकाने के लिए। अल्लाह के नबी ने मिसाल दी कि तुम में से कोई जैसे आटा गूंथता है रोटी पकाने के लिए, और आटा गूंथने के बाद रोटी पकाने के लिए जिस तरह से एक पेड़ा उसमें से तोड़ा जाता है और आटे की एक मकदार की जाती है रोटी बनाने के लिए, इसी तरह अल्लाह ताला ने पानी में से इस जमीन को निकाला और सबसे पहले निकालने की जो जगह थी वो काबतुल्लाह है, ये पूरे जमीन का मरकज है। और अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए उसको इबादत का मरकज करार दे दिया। मुरूर ज़माना से, ज़माने के गुजरने से, इनकलाबात ज़माना से हालात आते रहे। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस काबतुल्लाह की तामीर फरमाई। जब काबतुल्लाह की तामीर मुकम्मल हो गई तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि लोगों के अंदर आवाज़ लगाओ हज की फर्जियत की। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तो ज़ईफ़ और कमज़ोर हूँ, मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया आवाज़ का लगाना आपका काम है, आवाज़ का पहुँचाना हमारा काम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज़ लगाई तो हदीस का आता है अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसी सूरत हाल है कि कपास के किसान अपनी मेहनत की फसल बेचने के लिए दर दर फिर रहे हैं। किसान कपास की फ़रोख्त के लिए आदिलाबाद में जद्दोजहद कर रहे हैं, जो ज़िला आदिलाबाद में उगाई जाने वाली अहम तिजारती फसल समझी जाती है। हाल ही में रुई की ख़रीदारी में ताअत्तुल पैदा हुआ है क्योंकि निजी ताजिर इस साल CCI की तरफ से मुतारफ़ कराई गई जिनिंग मिल्स की सतह की पॉलिसी की मुखालिफत कर रहे हैं। रियासत भर की जिनिंग मिलों ने ख़रीदारी रोक दी है। प्राइवेट ताजिरों और CCI हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। ज़रई मार्केट यार्ड में पीर की सुबह से ही ख़रीदारी बंद है। CCI ने जिनिंग मिलों में सहूलियात और दीगर अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए इस साल A, B और C की सतह मुख्तस की है। आदिलाबाद में A और B सतहों में कुल 17 जिनिंगों को शामिल किया गया है। ताहम ताजिरों का मुतालबा है कि CCI की जानिब से कायम करदा जिनिंग मिलों को कपास भिजवाई जाए, इसलिए ख़रीदारी का अमल ठप होकर रह गया है। ఈరోజు ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా పొద్దున్న నుంచి మాకు 6:30కి మేము వచ్చినాము రైతులము, కానీ ఇప్పటిదాకా చాలు లేదు, మార్కెట్ అంతా బంద్ ఉంచిండ్రు,
మాకేం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు. నైట్కు పేపర్స్లలో ఇచ్చింది కానీ మాకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ పేపర్ వాళ్ళు ఇంకా మాకు లీక్ చేయకుండా మాకు పొద్దున్న వీడికి వచ్చినాక బంద్ ఉంచలేదు, ఏం లేదు. మార్కెట్ చాలా ఉంచింది, ఇప్పటిదాకా మాకు జోక్తలేదు. ఇప్పుడు ట్రాలీలో ఏమో ఎక్స్ట్రా ఛార్జెస్ అయితే అని అంటుండ్రు. మరి ఇది ఇప్పటిదాకా చాలగాలే కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక ముందన్నా కానీ ఇట్లా ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా మాకు బంద్ ఉంచొద్దానని కోరుతున్నాం. PUC सेकेंडरी की एक और तालिबा स्वाति प्रिया ने ट्राइबल IIT बासरा में ख़ुदकुशी कर ली, जहां हुकाम का कहना है कि उसने ख़ुदकुशी की है। वहीं लवाहिकीन का इल्ज़ाम है कि उन्हें इस वाक़े पर शक है। इस वक्त ट्राइबल IIT में थोड़ा तनाव देखा जा रहा है। ABVP के लीडर बड़ी तादाद में वहां पहुंच रहे हैं और एहतजाज किया। उसके साथ ही हालात अचानक काबू से बाहर हो गए और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इस वाक़े में ABVP के एक लीडर को शदीद चोटें आई और उसे इलाज के लिए भैंसा एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। कायदीन ने सवाल किया कि अगर सिक्योरिटी गार्ड्स का ट्राइबल IIT गेट के सामने पुरअमन एहतजाज करने वालों को जद को करना कहाँ तक दुरुस्त है। లాక్కొని వస్తుండ్రు కానీ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు కట్టె కట్టి మమ్మల్ని తరిమి కొట్టిండ్రు, నెత్తి పళ్ళ కొట్టిండ్రు. ఈయననే కాదు ఇంకా అక్కడ నలుగురిది ఇట్లానే ఇదే పరిస్థితితో అక్కడ ఉన్నారు. వాళ్ళు పోరాడుతుండ్రు. దానికి ఏమైంది? ఉదయవాళ్ళు కొట్టిండు సెక్యూరిటీ గార్డ్. అక్కడ పోలీసులు ఉన్నా కానీ అధికారులు ఏం చేస్తలేరు. సెక్యూరిటీ గార్డులతో మాట్లాడుతున్నారు. పోలీసులు లోపలికి పోయి మాట్లాడుకొని వస్తుండ్రు. జరిగింది దాన్ని వేసినప్పుడు పొయ్యిలో కట్టె తీసుకొచ్చి దాడి చేస్తున్నారు. నెత్తి వాళ్ళ పళ్ళగొట్టిండ్రు. आदिलाबाद रिम्स डायरेक्टर जय सिंह राठौड़ ने होंठ कटे बच्चों के लिए लगाए गए कैंपों से फ़ायदा उठाने शहरियान को मशवरा दिया। रिम्स अस्पताल में AVR डेंटो फेशल अस्पताल के ज़ेर एहतमाम होंठ कटे बच्चों का मुफ्त इलाज के कैंप का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर जय सिंह राठौड़ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से कैंप का दौरा किया और कई तजावीज़ दी। टेस्टों का तरीक़ाकार और मरीज़ों से तफसीलात दरियाफ़्त की। हैदराबाद से आए डॉक्टर विजय कुमार ने बच्चों का मुआयना किया और उन्हें सर्जरी के लिए हैदराबाद रेफ़र कर दिया। इस प्रोग्राम में रिम्स के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अशोक, प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर YC श्रीनिवास, डाइस इंचार्ज मैनेजर राधिका, फिजियोथेरापिस्ट नागार्जुन, डॉक्टर आदित्य और दीगर ने हिस्सा लिया। इस मौके पर रिम्स डायरेक्टर जय सिंह राठौड़ ने कहा कि डाइस सेंटर में हर 3 माह में एक बार मुख्तलिफ बीमारियों के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जाता है। ये इंकशाफ किया कि सर्जरी बग़ैर किसी खर्च के की जा रही है। मुतासिरीन को मशवरा दिया कि उस मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। ఈరోజు రిమ్స్ హాస్పిటల్లో క్లెఫ్ట్ ప్యాలెట్ క్లెఫ్ట్ గురించి ఒక ప్రోగ్రామ్ అరేంజ్ చేశారు. డాక్టర్ వై శ్రీనివాస్, డాక్టర్ రాధిక గారు, ప్లస్ హైదరాబాద్ నుంచి డాక్టర్ విజయ్ కుమార్ ఫేషియల్ మెగ్జల్ సర్జన్ వచ్చారు. ఇప్పటివరకు మేము 24 మెంబర్ రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయారు. డాక్టర్ గారు పేషెంట్ని చూస్తున్నారు. ఏమైనా అవసరం ఉంటే ఇక్కడ ఐడియల్ స్పీచ్ థెరపీ ఉంటే స్పీచ్ థెరపీ పంపిస్తున్నారు. ఏదైనా మరి సర్జరీ అవసరం కూడా డాక్టర్ గారు హైదరాబాద్ తీసుకెళ్ళి సర్జరీ చేస్తారు. ఆదిలాబాద్ ప్రజలకు కోరుకునేది ఏంటంటే ఇటువంటి అవకాశాన్ని ఇట్లా చేసుకోవాలి. ఈ డై సెంటర్లో ఎవ్రీ 3 months ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. లాస్ట్ టైం కార్డియాక్ క్యాంప్ జరిగింది. ఈరోజు క్లెఫ్ట్ ప్యాలెట్ గురించి జరుగుతుంది. సో జనాలు ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజలు ఎక్కడ చిన్న పిల్లలకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉన్నా ఇక్కడ వచ్చి ఏదో మేము స్పెషల్ క్యాంప్ పెడతామో క్యాంప్ పెట్టినప్పుడు వచ్చి చూసుకొని వాళ్ళు హైదరాబాద్లో మన ఆరోగ్యశ్రీలో మన డాక్టర్లు సర్జరీ చేస్తున్నారు. సో ఇటువంటి క్యాంప్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలని కోరుతూ ఈ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్టే ఈ యొక్క మా వై శ్రీనివాస్ కావచ్చు, రాధిక గారు కావచ్చు, विजय मेरे स्टाफ अंदर की ना पेरे ना धन्यवाद। खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कली श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश के ज़मन में
اردو صحافیوں کا اجلاس، تہنیت کی پیشکش۔ عادل آباد میں جاوا NGO کے زیر اہتمام مشاعرے کا کامیاب انعقاد، کندی سرینواس ریڈی کی بحیثیت مہمان خصوصی شرکت۔ عادل آباد کی سرگرم تنظیم سیوا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام شاعر مشرق علامہ اقبال اور مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش تقاریب کا شاندار انعقاد، صحافیوں اور اساتذہ کی خدمات کی سفارش۔ البراق ٹورز اینڈ ٹراولز کے زیر اہتمام حافظ محمد منظور احمد کی قیادت میں تربیتی کیمپ کا کامیاب انعقاد، 12 نومبر کو قافلہ روانہ۔ خبرنامے میں فی الحال بس اتنا ہی۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے من نیوز اردو خبرنامہ۔